So now the next section that we are going to see is population growth. Now यहाँ पे we are going to try and understand कि what are the trends in population, whether the population is increasing, decreasing, and what factors are affecting it, and how do we come to these conclusions and all. So size of a population for any species is a dynamic parameter. मतलब क्या, I've already told you कि population is in a dynamic state. मतलब dynamic मतलब it is ever changing. It can increase, it can decrease, it can remain stable. There can be n number of factors affecting it. तो उसकी वजह से population का size कभी भी same नहीं रहता है for any species. It is always changing. It changes with time depending on various factors. बहुत सारे factors उसको affect करते हैं, जैसे availability of food, predation, okay, then adverse weather. In fact, the changes in population density gives us idea about whether it is flourishing or declining. Even that is true. Population density क्या है, हमने previous video में देखा था. अभी वो density can give us an idea. अगर density बढ़ रहा है मतलब the population is flourishing in that area. Density घट रहा है मतलब the population is declining in that area. Then what you can see is population से ही related the other things. See, density of a population in a habitat is nothing but density का definition वापस repeat किया है कि density of a population in a habitat during a given period वो fluctuate होता है due to changes in 4 basic process they have given. So density के बारे में अगेन डिस्क्राइब कर रहे हैं वो लोग. तो डेंसिटी किस चीज़ से अफेक्ट होता है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में हैबिटेट में फॉर एट अ गिवन पीरियड वो फ्लक्चुएट हो सकता है ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेस. विच आर दोज बेसिक प्रोसेस? न्यू बर्थ्स, ज़्यादा बर्थ्स हुए तो डेंसिटी बढ़ेगा वहाँ का. इमिग्रेशन, और न्यू बर्थ्स को बी से इंडिकेट किया उन्होंने. इमिग्रेशन मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स न्यू आना, ओके, कहीं और से वहाँ पे आएंगे. तो इमिग्रेशन कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी. देन डेथ्स की वजह से, डेथ्स को डी से सिम्बलाइज किया है, डेथ्स से डेंसिटी गिरेगा और घटेगा. ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन में फ़र्क है. ई माइग्रेट होना मतलब वहाँ से चले जाना, तो वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है या वॉट एवर XYZ रीज़न इज देयर, तो वहाँ से अगर ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं तो नेचुरली इट विल डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी. सो इमिग्रेशन को आई से हम लोग बताएंगे और ई माइग्रेशन को ई से इंडिकेट करेंगे. इमिग्रेशन इज नथिंग बट number of individuals of the same species that have come to that habitat from somewhere else during that time period, okay, and immigration is nothing but number of individuals of that population who have left that habitat during that time period. तो अगर if n is the density that we are going to calculate at time t, तो at density at time t plus 1 can be calculated with the following formula, that is n t plus 1, that is density at that new time will be equal to density at given particular time plus what you can see is total number of births plus immigration उसमें ऐड होंगे और उस टोटल में से माइनस क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एंड ई माइग्रेशन. तो यू विल गेट द टोटल डेंसिटी एट दैट टाइम पीरियड इन दैट गिवन हैबिटेट. देन नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे. ग्रोथ मॉडल्स में पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ग्राफ्स जिसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूशंस लेते हैं. Growth models में, so they have asked you, does the growth of a population with time show any specific and predictable pattern? तो yes, we can see कि there are certain patterns जो population growth में देखे गए हैं, and from these patterns we can predict whether the population is increasing, decreasing or stable, etc. Then see, they have given, we have been concerned about the unbridled human population. Unbridled मतलब uncontrolled human population growth है, correct? So this is a concern issue because population जितना बढ़ता है उतना resources कम पड़ने लगेगा, and resources कम पड़ेगा तो naturally after a certain limit the population cannot grow. We know that, but the population will get adversely affected. So and plus other issues we know because of population explosion, poverty, crime increasing, proper education नहीं मिलता, medical facilities नहीं मिलती. This is all related to human population explosion, all these problems we are facing.
तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में रखना ये उतना ही ज़रूरी है। लेकिन ग्रोथ को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले हमको ये तो जानना है कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है इन अ कंट्री, एंड देयरफॉर इट इज़ नेचुरल फॉर अस that we are curious to know if the animal population is also increasing or not, or human population is, how is it, okay। तो इन सब का हम लोग थ्रू द ग्राफ एक आइडिया रख सकते हैं। सो दे हैव सेड दैट it is natural for us to be curious if other animal population in nature also behave the same way or show some restraint on growth। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रोथ, ये सब हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में उसका ग्रोथ पैटर्न पढ़ते हैं। इट इज़ अ नेचुरल क्यूरियोसिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज एवरी अदर फैक्टर इज अफेक्टिंग अस, सो वी कीप अ चेक ऑन देम ऑल्सो। सो नाउ व्हाट आर दिस ग्राफ्स या ग्रोथ मॉडल्स थ्रू विच वी कम टू नो व्हाट इज द पॉपुलेशन का स्टेटस। तो पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज लाइक फूड, स्पेस विच आर एसेंशियल फॉर एनी ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये आइडियली व्हेन द रिसोर्सेज इन अ हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ऑब्वियसली व्हेन अनलिमिटेड फूड सप्लाई है, बहुत सारा जगह है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए खाना है, जगह है, तो ऑर्गेनिज्म कैन ईजिली सर्वाइव ओवर देयर। सो ईच स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू फुल्ली रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। तो दैट इज व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। तो दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, दे आर लिविंग अ वेरी नाइस लाइफ ओवर देयर, सो नेचुरली वो फुल एज तक जिएंगे एंड अपॉन दैट दे विल रिप्रोड्यूस ऑल्सो एट अ गुड नंबर। तो नेचुरली उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। देन द पॉपुलेशन ग्रोज, ऐसे सिचुएशन में इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाएगा पॉपुलेशन। ओके, देन व्हाट वी कैन सी इज रैपिडली बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कि पॉपुलेशन साइज एक एक्सेस पे दिखाया और दूसरे एक्सेस पे टाइम। तो इफ़ यू सी अलॉन्ग विद द टाइम द पॉपुलेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओनली एंड देयर इज इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। दिस टाइप ऑफ ग्राफ, जिसको जे शेप ग्राफ भी बोलते हैं, एंड दिस ग्राफ इज ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ है ये। देन they have given every species is capable of growing exponentially, मतलब they will multiply at a rapid speed under unlimited resource, that is true, and reach enormous population densities in a short time। तो थोड़े टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे नंबर में, तो नेचुरली उस जगह का डेंसिटी भी उतना ही बढ़ जाएगा। Darwin has showed how even a slow growing animal like elephant can reach enormous numbers। ओके, अगर उसको प्रॉपर स्पेस और फूड अनलिमिटेड मिला तो इवन एलिफेंट्स जो एक्चुअली ब्रीडिंग के लिए बहुत टाइम लेते हैं, उनका 2 साल में एक बच्चा पैदा होता है और वो भी एट अ टाइम एक ही बच्चा देते हैं। तो इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन एज सच, बट देन अगर रिसोर्सेज उनके लिए भी अनलिमिटेड है तो उनका भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ सकता है। So, but we know that resources are never going to be unlimited. There is always a limit to everything. So resources like food and space are not always unlimited. They may be in the beginning unlimited, लगेंगे क्योंकि population पहले कम होता है तो इसलिए resources ज़्यादा लगते हैं। But as the population density will increase, the competition naturally for these resources will increase, so resulting into a slowdown in the rate at which the original population was growing। तो naturally जब resources limit होने लगेंगे, competition बढ़ने लगेगा, तो रेट स्लो डाउन हो जाएगा। ओरिजिनली वो पहले फास्ट बढ़ता हुआ लगता है, फिर बाद में वो रेट स्लो हो जाता है। तो ये जो पैटर्न है ये एक्चुअल में दिखता है और इस पैटर्न को बोलते हैं, दैट इज द नेक्स्ट ग्रोथ पैटर्न, दैट इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक या उसको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। नाउ हाउ डज दिस लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व लुक्स, तो इसको सिग्मॉइड यानी ये एस शेप दिखता है। लॉजिस्टिक क्योंकि दिस इज द लॉजिकल थिंग दैट यू गेट टू सी इन नेचर। ओके, तो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिसोर्सेज का लिमिटेड होते हैं, एंड दिस रिसोर्स लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेचुरली गोइंग टू वीड आउट द वीकर वंस। मतलब क्या है, व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग अनवांटेड प्लांट्स जो खेतों में उगते हैं, जैसे हम हटा देते हैं उनको ताकि हमारा ओरिजिनल प्लांट हेल्दी हो गए, वैसे ही लिमिटेशन ऑफ दिस इज जस्ट कोरिलेशन। वैसे ही सिमिलरली इन अ पॉपुलेशन व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, theory of natural selection comes into play. The stronger one will fight and get the resources, and the weaker one will be removed. It will get destroyed or it has to go away from that habitat. So only the fittest individual will survive and reproduce.
in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number. So किसी भी environment में जो resources होते हैं वो resources एक limited number of population को sustain करने में help कर सकते हैं. अगर population उस resources की capacity के beyond बढ़ रहा है तो it is very very natural कि there won't be any further growth in that population. So let us call this limit, इस लिमिट को नेचर के रिसोर्सेज की लिमिट को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको अल्फाबेट के से इंडिकेट करते हैं. सो दैट इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट. तो यहाँ पे व्हाट यू कैन सी इज दिस ग्राफ, दिस इज अ एस शेप्ड ग्राफ दैट यू गेट. यहाँ पे एक तरफ ग्रोथ दिखाया है, दैट इज साइज या वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई से भी एंगल में वो ग्रो हो सकता है, एंड टाइम स्केल दिखाया है. तो व्हाट यू सी, स्टार्टिंग में जब रिसोर्सेस एम्पल है एंड पॉपुलेशन कम है तो ग्रोथ फटाफट हो रहा है, क्योंकि पहले से ऑर्गेनिजम्स कम है तो उनके लिए रिसोर्सेज एम्पल है, तो दे लिव एंड दे रिप्रोड्यूस मोर. तो फिर पहले स्टार्टिंग में तो वो पॉपुलेशन कम है, इसलिए लैग फेज. फिर वो रिप्रोड्यूस करने लग रहे हैं फटाफट क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज एम्पल में है, तो दैट इज लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, जहाँ पे वो एक्सपोनेंटली बढ़ रहा है. तो यहाँ तक जे शेप है, लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंस इज कैरिंग कैपेसिटी कम्स इनटू एक्शन. द एनवायरनमेंट या हैबिटेट का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो रीच हो जाता है, मतलब अभी वो रिसोर्सेज लिमिटेड होने लगने लगे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे. सो नाउ व्हाट विल हैपन, द कंपटीशन विल इंक्रीज, द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विल कम इनटू प्ले, और नेचुरली द वीकर वंस विल बी एलिमिनेटेड, मतलब वो मरने लगेंगे. तो अभी जितने मर रहे हैं एट द सेम टाइम दे आर रिप्रोड्यूसिंग ऑल्सो, तो उतने ही बन भी रहे, तो पॉपुलेशन स्टेबल होने लगता है. So that is the growth has stopped. There is no new additions. जो न्यू आ रहे हैं उतने पुराने मर भी रहे हैं या एग्जिस्टिंग मर भी रहे हैं, तो the growth has diminished and there is a stationary phase. It is not declining क्योंकि death rate more नहीं है, birth rate भी है उतना equally, so it has become stationary. So you get this S-shaped curve जिसको logistic curve बोलते हैं या sigmoid curve of population बोलते हैं. Then what you can see is, so यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है, a population growing in a habitat with limited resources which initially show a lag phase. लैगिंग मतलब स्टार्टिंग में उतना फास्ट नहीं बढ़ रहा है, फॉलोड बाय अ फेज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक्सपोनेंशियल दैट इज फास्ट ग्रोथ, एंड देन अ डिसेलरेशन मतलब द ग्रोथ विल स्टॉप या कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इन स्पीड. ओके, एंड फाइनली असिम्प्टोम मतलब एक स्टेशनरी फेज जहाँ पे द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बट नॉट रीचिंग अ पर्टिकुलर क्वाइट हाई लेवल. ओके, देन व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कब होता है, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एरिया. सो अ प्लॉट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज n, उसके बारे में जस्ट अ मिनट. सो हम लोग यहाँ पे ग्राफ में क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को इन रिलेशन टू टाइम जब प्लॉट करते हैं तो हमको ग्राफ में कैसा ग्राफ मिला, हमको सिग्मॉइड कर्व मिला. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिग्मॉइड कर्व की ग्राफ को, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को और एक नाम है दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं. उसका पूरा नाम है वर्ल्ड-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. इट इज फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओके, देन व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज कि इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट तुमको बता देती हूँ कि जो वर्ल्ड-पर्ल लॉजिस्टिक कर्व है, it just indicates a population growing in a habitat with limited resources. and initially जो phases हमने देखने थे वो phases सारे देख लिए. ये जो कर्व है ये ऑब्वियसली ये एक लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, बट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट, मेनी कैलकुलेशंस टू इट. सिंपली रिमेंबर दैट इट इज लॉजिस्टिक फंक्शन या उसको लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं. एस शेप दैट इज सिग्मॉइड कर्व. इट हैज़ इट्स ओन इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस. देन next to that is since resources for the growth for most animal population are finite, okay, they are not infinite, they are limited and they are and become limiting sooner or later. मतलब शायद स्टार्टिंग में लिमिटिंग ना लगे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा रिसोर्सेस लिमिट में लगने लगेंगे. सो द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड एज अ मोर रियलिस्टिक वन. Then they have asked you, related to this population growth only, to gather the data from census counting. Census is counting of the population. You have to count the population figures for India for the last 100 years, okay, and plot them and check which growth pattern is seen.
तो अगर हम लोग देखें तो 1950 से लेके 2020 तक, ओके, जब से काउंटिंग शुरू हुआ है, पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, बट स्टार्टिंग में वो बहुत फास्ट बढ़ रहा था, लेकिन अभी रिसोर्सेस लिमिटेड होने लगे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लगा है। ओके, 1982 और 83 के बीच से वो गिरने लगा है, एंड 2020 में ग्रोथ रेट कम हो गया है, बट देन द पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग एंड इट्स क्वाइट मोर, बट द रेट इज क्वाइट स्लो नाउ। एंड अभी तो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो पीपल आर लाइक हैविंग लेस नंबर ऑफ किड्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से भी ये फ़र्क दिखने लगा है।